Hello, guys. Welcome back to another episode with Crick Beyond, where a bunch of inexperienced club cricketers are reviewing experienced champs out there. So, here we have some new faces. We have G. who has joined us. We have Hiren Bhai who has joined us. We have Parshva and Raj and me who are already there since a few weeks now. So, here we are to preview the match KKR versus LSG, the double header tomorrow, the 21st game. So, let's start with that. It's the battle between the two teams that are placed perfectly in the middle of the points table. At number 5 we have Kolkata Knight Riders, and at number 6 we have Lucknow. Both of them winning like two matches out of their four and losing two matches. So yeah, let's see who performs well tomorrow. What do you think, Parsha? Like, who has a better team on paper tomorrow? Speaking of better team, both are placed well. I mean, as you said, both are in the middle of the points table. So I feel both are equally balanced. And KKR playing back at Eden Gardens, I think KKR might have an upper hand. And as you see, Venkatesh Iyer and Rinku Singh did score good in the last game, coming back to form. So I think KKR might have an upper hand. And also, I mean, Marsh and Puran on the other hand, playing extremely well. So I guess So who teams has are the equally upper hand? balanced, Because you are saying but teams are Markram equally Marsh playing balanced. brilliantly here. Te- KKR teams इनमें are आपको equally मतलब balanced, but I guess a KKR might have an upper hand tomorrow. KKR you are saying will be having the upper hand. So I don't think so, because if you see the betting lineup for me, LSG is far more heavy in betting when you compare it with KKR, The because only the even if only issue with one's not KKR is their playing. top order is not firing at all. That is the only issue KKR are having. अगर KKR का ऊपर का ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है तो पावर स्टार्ट उनको नहीं मिलने वाला है बिकॉज मार्स ऑलरेडी एक इंच स्टार्ट दे रहा है, मार्करम ने फास्ट खेलना स्टार्ट कर दिया है और उनका वन डाउन आता है पूरन के Nicholas लिए। Puran is also there. तो पावर की तो उनको नीड है ही नहीं एलएसजी को। केकेआर का पावर का प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है बिकॉज क्विंटन डिकॉक इज नॉट एबल टू गिव देम द स्टार्ट, सेम विद सुनील नारायण। तो दोनों बोथ आर लैकिंग वन गुड इनिंग्स दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर बैट बिकॉज एवरी टाइम वी सी केकेआर, तो इन बैटिंग वी हैव टू कंपेयर इट विद दे आर नॉट गेटिंग गुड स्टार्ट्स, पावर प्ले में स्कोर्स उनके अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ देयर दे डोंट हैव द पावर पैक इन बैटिंग लाइनअप। इफ यू सी लोअर डाउन द ऑर्डर भी उनका रसल है वो काम नहीं कर रहा है। वेंकटेश अय्यर तो अभी एक मैच चला है तो दो मैच अभी थोड़ा वो शांति है बैठेगा मेरे हिसाब से बिकॉज ही इज सेम लाइक ईशान Same as किशन Ishan फॉर मी। Kishan. या ही इज द सेम प्लेयर। आई ही इज Let's हेवीली see. रेटेड प्लेयर बट मेरे हिसाब से वो सेम है। एंड तो मेरे हिसाब से वही है कि भाई ये पावर स्टार्ट उनकी ओपनर नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज वो एक कंसर्न है बिकॉज लास्ट ईयर इफ यू सी उनके आईपीएल का जीतने का मेन रीजन था बिकॉज ऑफ देयर पावर स्टार्ट्स, दे वर एबल टू यूटिलाइज इट। तो पावर स्टार्ट नहीं मिलने की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एवरीथिंग शिफ्ट्स टू द मिडल ऑर्डर, और मिडल ऑर्डर अपना नेचुरल गेम खेल नहीं पा रहा। अगर तू देखेगा तो उनका केकेआर का जो मिडल ऑर्डर दैट इज अ हेवीली पैक्ड हिटिंग ऑर्डर, ठीक है। कोई भी बंदा वहां पे खड़ा रहने वाला है नहीं। अगर इफ यू सी देयर मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, सब मारने में ही आउट है बिकॉज दे हैव मेड दैट लाइनअप इन दैट वे। तो जो करना है वो सारा का सारा एंकरिंग का पार्ट है वो अजिंक्य रहाणे के ऊपर है वहां पे। बाकी रिंकू सिंह इज अ हिटर, रमनदीप सिंह इज अ हिटर, एंड्रे रसल इज अ हिटर। तो नीचे सारे के सारे हिटर। Raghuvanshi is trying to. Raghuvanshi is trying to adapt both the ways, but Raghuvanshi is not, yet capable of anchoring. But Raghuvanshi is also a balanced player. I think Raghuvanshi और राणे सब के बैलेंस की वजह से उनका थोड़ा सेटल हुआ था लास्ट गेम में बिकॉज वो दोनों ने थोड़ा स्मार्ट इनिंग्स खेल के 200 रन पहुंचाए थे। सो वही है, तो मेरे हिसाब से उनके ओपनर्स को बिग इनिंग्स का जरूरत है। एंड एलएसजी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न एक ही है, ऋषभ पंत। कैप्टन है, स्ट्रगल, उसका टच चला गया है, उसका कुछ भी मतलब उसका मतलब I इफ यू कंपेयर इज लास्ट ईयर, अगर लास्ट सीजन का स्टैट्स देखोगे तो 446 रन उसका था, एवरेज 40 का एवरेज था उसका, और स्ट्राइक रेट 155 का था। और लास्ट सीजन में खाली एक ही सिंगल डिजिट स्कोर था। एंड अभी अगर उसका देखने जाओगे तो 3 मैच में उसने 19 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट है 59 का उसका, ठीक है। Stumping is also not proper up to the mark. उससे अच्छा तो माई भाई खेल रहे हैं, लोग उनको भले ट्रोल कर रहे हैं, उससे अच्छा तो रोहित शर्मा खेल रहा है भाई।
to be very honest. Agreed. ऋषभ पंत I agree with ऋषभ पंत you. इज बीइंग अ यंग प्लेयर, मतलब 24 साल की उसकी एज है, अगर 38 वाले और With 43 the वाले amount he has got, also with the amount he has got, वो अमाउंट भी तो एक ठीक है, बट दैट कंसर्न। इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर हिम। और अगेन कल जो ईडन गार्डन्स की पिच होगी, ठीक है, कि वहां पे बॉल थोड़ा रुक के आने वाला है, तो शॉट सिलेक्शन वापस इजी नहीं होने वाला है। तो अगेन आई एम अगेन डिसअग्रीइंग टू पार्श्व कि भाई पंत विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, जो पार्श्व ने बोला है। No, I'm not saying watch out for. I just feel कि अगर वो थोड़ा runs करके, आई it डोंट will be थिंक good सो, for his team as well. नॉट फॉर टुमारो, फॉर श्योर, क्योंकि Tomorrow, I feel Nicholas Puran is the player you should watch out for. As is right now, his match cricket is very consistent. He is playing very nicely. So if I see the overall head to head in the last five encounters, it is in the favor of LSG. Like they have won three and lost two, and at this venue, it is equally tied at 1-1. So let's see who wins tomorrow. But I What? also feel that definitely LSG has the upper hand here. Simply because KKR का नहीं फायर कर रहा है टॉप ऑर्डर, दैट्स फॉर श्योर। मेरे इफ हिसाब से कल केकेआर जीतेगा। नहीं, आई एम ऑल्सो सी, आई एम नॉट टेलिंग कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। द ओनली थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई पिच थोड़ा होल्ड होके आने वाला है कल बॉल। एलएसजी एंड केकेआर में एलएसजी हैज वन 3, केकेआर हैज जस्ट वन 2। द थिंग इज दैट एनरिक नॉर्गिया इज कमिंग टू फुल फिटनेस, मतलब ही इज गोइंग टू बी फुल फिट, आई थिंक सो, अगर वो फुल फिट होगा तो। एंड आई ऑल्सो, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट केकेआर इज कि क्विंटन डिकॉक को और एक चांस दे रहे हैं, ठीक है। एंड इफ इज नॉट फायरिंग, तो लास्ट टाइम जो हम एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे, जहां पार्श्व ने बोला था कि दे हैव गुरबाज इन देयर, ठीक है, दे कैन गेट हिम इन। Hmm. लास्ट टाइम वी हैड अ हम्म। डिस्कशन अबाउट दैट टू, कि गुरबाज अंदर बैठा है तो वो भी बाहर आ सकता है, ठीक है। एंड द ओनली थिंग कि मेरे को एक चीज और बेटर ये लग रही है कि केकेआर हैज दैट बॉलिंग स्ट्रेंथ विद देम, इफ यू सी, क्योंकि जो पिच पे बॉल रुक के आएगा तो दे हैव ऑप्शंस ऑफ आंद्रे रसल, दे हैव मोइन अली इन देयर, यू नो दे हैव सुनील Sunil नारायण इन Narayan. देयर, दे हैव वरुण चक्रवर्ती, दे हैव वैभव अरोरा। Harshit Rana. हर्षित राणा को तो मैं गिनता ही नहीं, वो बॉलर ही नहीं उनको वी है, डोंट उसको वी काउंट, डोंट काउंट, हर्षित प्लीज राणा उसको वी डोंट छोड़ दो। गौतम काउंट। गंभीर कोटा। दूसरे अगर आप दूसरे बॉलर अगर मेरे को ओवर डलवानी है तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, आंद्रे रसल निकालेगा, मोइन अली निकालेगा, सुनील नारायण निकालेगा, वरुण चक्रवर्ती निकालेगा, वैभव अरोरा निकाल के देगा। तो 5 बॉलर तो मेरे उधर हो ही गए, तो मुझे 20 ओवर तो मेरे को डलवानी है। और कोई खराब डाल रहा है तो हर्षित राणा को दे दो, वैसे भी वो आई कौन सी अच्छी डालता है, वो अलग बात है। तो ईयर मैं And देख रहा for हूँ चेतन साकरिया भी एक ऑप्शन है इफ दे वांट टू रिप्लेस हर्षित राणा, हु कैन बी अ गुड डेथ बॉलर एज वेल, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अभी ऐसे देखे तो केकेआर में ऐसा कोई डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट आप बोल नहीं सकते कि कोई है। इफ यू टेक स्पेंसर जॉनसन, वो भी अप फ्रंट डालते हैं। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, दे बोथ आर स्पिनर। आई डोंट थिंक वैभव अरोरा इज ऑल्सो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, टू बी ऑनेस्ट। और हर्षित राणा तो इज नॉट इवन स्टार्ट के ओवर के स्पेशलिस्ट, मिडल ओवर या डेथ ओवर, नो स्पेशलिस्ट एट ऑल। सो आई थिंक व्हाई नॉट टेक अ चांस विद चेतन साकरिया, हु कैन गिव यू अ लेफ्ट हैंडर्स एंगल एज वेल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे केकेआर हैज वन द लास्ट मैच। मुझे नहीं लगता कि इतना हाइपोथेटिकल चेंज कोई आने वाला है कि हर्षित राणा जो अभी इंडिया के स्क्वाड का मेंबर है उसको बिठा के वो लोग इसको लेंगे। एंड केकेआर के पास बहुत अच्छा दिमाग है उधर। एक तो वो अंदर बैठे है चंद्रकांत पंडित, वो सबसे बड़ा उनका दिमाग है, और दूसरा उसका बड़ा दिमाग है अजिंक्य रहाणे। तो मुझे नहीं लगता अननेसेसरी कोई चेंजेस आएगा। एंड सेम डिस्कशन वही कि विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई चेंज करेगा ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, अनलेस एंड अनटिल पिच के हिसाब से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कल खाली चेंज दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि मोइन अली विल बी देयर, क्योंकि जो स्पेंसर जॉनसन के बदले उसको रिप्लेस किया है बिकॉज ऑफ द होल्डिंग विकेट, जो स्लो विकेट के हिसाब से। द वेरी गुड मैचअप दैट आई एम सीइंग इज सुनील नारायण हैज अ मैचअप विद निकोलस पूरन, ठीक है। yes. he has he has bowled a maiden super over against that guy. करेबियन में, करेबियन हाँ, प्रीमियर लीग। एंड द वेरी गुड फैक्ट दैट आई एम रीडिंग इज कि भाई उसने 150 बॉल में सिर्फ 171 रन ही नारायण ने लीक किया पूरन के सामने। तो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप टू सी कि पूरन बीइंग इन टॉप फॉर्म एंड नारायण नॉट इन दैट ग्रेट फॉर्म, टू सी कैसे वो लोग एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी। Even Russell has got him 7 times. ना टू या रसल ने पूरन को 7 बार आउट किया, तो दैट विल आल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप टू सी।
And for Lucknow Super Giants, I think the guy to watch out for tomorrow, according to me, will be Aiden Markram, because Aiden Markram को बॉल से ज्यादा काम करना पड़ेगा, since KKR are having 4 left-handers in the squad. So I think that you might not be shocked to see कि Aiden Markram को 1-2 ओवर कल मिल जाए तो. So हो सकता है Aiden Markram can also yeah, bowl. Aiden Markram can see. And So also here I also have a stat like LSG have picked the most wickets in power play. I don't know who is the bowler, like they don't have any bowlers for taking wickets. But yeah, they have picked the most wickets in the power play this season, whereas KKR have picked the second least wickets in the power play. So that I is, don't know that is who is something the bowler. interesting to watch out for. I can also say like if you want to say like a player to watch out for, definitely it will be Digvesh Rathi as well. He दिग्वेश has been राठी, consistent for 50 लाख का LSG. फाइन, 30 lakhs इज बाइंग प्राइस. अरे वो सब बाहर की बात है, बट ही हैज बीन कंसिस्टेंट. वो रन्स लीक नहीं कर रहा है दूसरे बॉलर्स की जैसे. इफ यू कंपेयर इट विथ रवि बिश्नोई हु इज एन एक्सपीरियंस बॉलर, वो उतना नहीं कर पा रहा है. लाइक दिग्वेश राठी इज बॉलिंग गुड एज कंपेयर टू रवि बिश्नोई. मतलब एक स्टेज पे आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, इफ यू वांट फॉर जस्ट लाइक ऑप्ट वन बॉलर वन स्पिनर, यू विल गो फॉर दिग्वेश राठी एट दिस मोमेंट. And tomorrow, I think LSG needs to watch out more, because to be very honest, Markram has fallen to spin 5 times 12 innings में. मार्च का स्ट्राइक रेट 200 से 139 हो जाता है अगेंस्ट स्पिन. पंत एवरेज इज जस्ट 15.4 अगेंस्ट लेग स्पिन. सो इट विल बी अ रियल चैलेंज फॉर LSG टू प्ले द स्पिन, क्योंकि 3 क्वालिटी स्पिनर्स, वन मिस्ट्री स्पिनर चक्रवर्ती, दूसरा मोइन अली, एंड तीसरा सुनील नारायण. 12, मतलब they have 12 overs of quality spin in there. So that will be a very, very big challenge for LSG, according to me. And if you see on the opposite side, quality spin for LSG is just one option, that is just Digvesh Rathi, because Ravi Vishnu is not in that form. So that is the only concern. Let us ask the new panelists, Hiren Bhai and Jeel, what do you feel are the players to watch out for? Let's go first with Hiren. क्वांटम डिकॉक एज पर मी, कल तो वो चलना ही चाहिए. अगर फर्स्ट बैटिंग आए तो मोस्ट प्रोबेबली 100% श्योर 50+ तो होना ही चाहिए, क्योंकि I उनके feel स्टेट्स अगर yes. बोलो हिरेन भाई. क्योंकि अगर उनके स्टेट्स देखोगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट अच्छे ही है. और कल केकेआर, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड भी देखे तो प्लस ग्राउंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरे हिसाब से केकेआर कल जीत जाना चाहिए. क्योंकि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के लास्ट जो 5 हेड्स टू हेड्स हुए उसमें देखोगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स लास्ट 2 में तो सिर्फ 2 runs and 1 run से जीते. आई थिंक केकेआर मस्ट विन एंड क्वांटम डिकॉक मस्ट बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मी. What do you think, Jeel, who can be the player to watch out for? I feel Nicholas Puran and Aiden Markram. अगर LSG का ओपनिंग पार्टनरशिप और वो सब अच्छा बैटिंग ऑर्डर रहा तो फिर तो केकेआर को बहुत प्रॉब्लम होगा स्कोर करने के लिए. और केकेआर में भी आई फील अजिंक्य रहाणे इज कंसिस्टेंट राइट नाउ. सुनील नारायण एंड क्विंटन डिकॉक का थोड़ा इतना अभी हुआ नहीं है, बट मे बी उन लोग वो भी चल जाए कल की मैच में. होम ग्राउंड है, कांट से मच. वेंकटेश अय्यर तो खेल ही रहा है, खेलेगा. तो लेट्स सी. अभी आपने सब नाम तो पूरे प्लेइंग 11 के नाम तो ले बट ही आई लिए. एम मोर टुवर्ड्स एलएसजी कि एलएसजी के चांसेस ज्यादा अलग रहे कल. Let's see, what do you think, Parsa? Like क्या चेंजेस कुछ कर सकते हैं कोई टीम? Any changes needed or both teams Yeah, I should be mean, looking at the pitch, I think that if Nokia is fit, he should play. He should have a game. अगर pitch support कर रहा है Pacers को. ये Apart पागल from that, I पगल don't की think बात that they करते हैं. मैं इतना बोल रहा हूँ, स्पिनिंग ट्रैक है, वही बॉल रुक के आएगा, बट वो बोल रहा वही नहीं भाई, नॉर्किया को that खिलाओ. is the thing वो I लोग was saying. स्पेंसर जॉनसन को बिठा के मोइन अली को लेंगे, बट नहीं, वही मोइन भाई बाहर जाए और नॉर्किया खेले भाई. भाई लास्ट मैच भी वही था, स्पिनिंग ट्रैक था, बट सिर्फ 200 तो बना मोइन अली फिर. आया था ना भाई. लास्ट टू लास्ट मैच में मोइन अली तो था. वी डिस्कस्ड, पार्थ ने बोला था कि मोइन अली आएगा. लास्ट मैच मोइन अली को चांस भी नहीं मिला लास्ट मैच में तो.
बट उसके पहले ही सामने की टीम ने हाथ खो दिए थे मैच से, तो कैसे उसको चांस मिलता भाई, तू वो तो समझ। लास्ट में तो मोइन बट अली ने ना स्टिल ही मैं एक वही बोल रन, रहा हूँ दैट एक बॉल खेला इफ था, इट एक इज अ बॉल डाला था। मैं वही बोल रहा हूँ, if it supports pace तो I mean इट नो इज नॉट अरे ऑफेंस बट will get इट a सपोर्टिंग इज नॉट chance पेस, for a इट सपोर्ट, इज finish. दैट इज व्हाट टेलिंग वी कि आर बॉल सेइंग। रुक के आने वाला है, उसके वजह से मोइन अली इज इन एंड स्पेंसर जॉनसन इज आउट। अगर बॉल अच्छा बैठ पे आता तो Okay, let's स्पेंसर let's जॉनसन let's खेलता move है। on to LSG. What do you think LSG will change, Parsha? What do you think LSG needs to change? According to Parso, LSG should LSG not will remove Pant and they will get a new captain. डायरेक्ट कैप्टन आउट. they should do that, but I don't think that will happen. But no, I don't think they should make any changes. If possible, they can get Shahbaz Ahmed instead of Ravi Bishnoi, but I don't think they'll do that. Again, Parsha is saying something very controversial. I feel if अगर वो पिच स्पिनर को असिस्ट करेगी तो why not bring in Shahbaz Ahmed in place of Shardul Thakur? Since Akashdeep is also fit, तो Akashdeep और Avesh Khan can be a two frontline pacers. Then why not bring, वैसे भी शर्दुल ठाकुर एक ही मैच खेला है, 4 विकेट लिया, फिर तो कुछ परफॉर्मेंस दिया नहीं है. सेम शाबाज अहमद will give you the same batting as Shardul Thakur gives. So why not bring in Shahbaz Ahmed instead of Shardul Thakur? Why it cannot be a good option? I mean, they already have three spinners. I mean, M. Siddharth coming back as an impact sub, so they have M. Siddharth. If they bring Shahbaz Ahmed instead of Bishnoi, then they have Shahbaz Ahmed, then they have Digvesh Rathi. So I don't think they'll require more spin. Even Markram gives an option, so they would need two quality, not that they can say two quality pace bowlers. तो है ना, दो क्वालिटी पेस बॉलर्स तो आ गए ना, आकाशदीप और आवेश खान. आप शर्दुल ठाकुर को क्वालिटी पेस बॉलर गिन But रहे guys, हो. why are you thinking of I dropping mean, bowlers? Why can't they Shabazz Ahmed replace Abdul Samad? Won't it be a like I don't think so. Samad is in form. Samad has shown form since last 2 games he has performed. So but still I I don't feel think, because I don't think so कि अवेश नहीं, खान, आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर में से कोई बाहर जाएगा, टू बी वेरी उनका ऑनेस्ट। उसका रीजन है बिकॉज डेविड हाँ. मिलर इज ऑल्सो आउट ऑफ फॉर्म. तो उनके पास एज सच कोई रिलायबल फिनिशर नहीं है. समद हैज शोन सम फॉर्म, तो आई डोंट थिंक ये बैट्समैन को निकालेंगे. नहीं, बट आई थिंक ही इज अ लाइक रिप्लेसमेंट फॉर मी। तो अगर अगर इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर वो लोग को उसको खिलाना ही है, तो आई थिंक अब्दुल समद विल बी रिप्लेस बाय शबाज अहमद, दैट्स व्हाट आई से। क्योंकि क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से इट मेक्स नो सेंस कि फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके स्पिनर को लो, बिकॉज यू नेवर नो हाउ द पिच टर्न आउट टू बी। तो कोई फास्ट बॉलर ड्रॉप नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 12 ओवर तो वो लोग पिच डालने ही वाले हैं। दिग्वेश राठी का मिला के 16 ओवर है, जो बचने वाला है वो देखेंगे क्या करना है। उससे बड़ा क्वेश्चन दैट आई हैव विद मी इज कि केकेआर रिटर्निंग आंद्रे रसल, ठीक है, अभी तक सीजन में उसको खाली 16 ही बॉल खेलने मिले, उसने 10 ही रन किया है। केकेआर का हैवी बैटिंग लाइनअप एंड रसल कमिंग दैट डाउन द ऑर्डर, ठीक है, एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू हिट एज सून एज ही स्टार्टेड टू वॉक इन, ऑल्दो ही इज आल्सो ग्रोइंग बाय एज। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केकेआर आर अंडर यूटिलाइजिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेंशंस बाय नॉट गिविंग बैटिंग अपॉर्चुनिटीज टू रसल। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्योंकि रसल इज अ प्लेयर हु कैन बी यूटिलाइज्ड इन द मिडल ऑर्डर। जब केकेआर को जब भी जरूरत है, ही कैन कम इन एंड ही कैन मतलब ही कैन चोक द ओपोनेंट्स क्लियरली। अगर वो 20 बॉल वहां पे खेल लेता है ना, तो सामने वाले की फट जाएगी। बट आई थिंक कि मैं जो केकेआर का स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ, दे आर अंडर यूटिलाइजिंग हिम नाउ, बिकॉज लास्ट ईयर व्हेन आई वाज सीइंग केकेआर वाज वेरी डिफरेंट विद श्रेयस अय्यर इन देयर। तो क्या होता था, वेन एवर रन वर नीडेड, जैसे चाहिए थे वैसे रिप्लेसमेंट करके रसल ऊपर नीचे कर रहा था। बट ये टाइम खाली, सो कल आई थिंक केकेआर इज प्लेइंग देयर फोर्थ मैच, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। केकेआर कल अपना फोर्थ मैच खेल रही है, 3 मैच में ही हैज जस्ट गॉट 16 बॉल उसको मिले, नॉट हार्डली इवन, फिफ्थ मैच केकेआर इज प्लेइंग देयर फिफ्थ फिफ्थ मैच मैच। नाउ. ओ दैट इज अ मोर कंसर्न। मगर फिफ्थ मैच में, मतलब पांच फिफ्थ मैच में उन्होंने खाली, अगर रसल को 3 ओवर भी पूरा खेलने नहीं मिला है, तो आई थिंक रसल इज बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड देयर अकॉर्डिंग टू मी। ही शुड डेफिनेटली बी गिवन अ चांस ऑफ द ऑर्डर, मेरे हिसाब से ही इज बीइंग So अंडर। you are saying कि Russell and Rinku Singh should swap places. Not Russell and Rinku Singh. Whenever it is needed, Russell should be given more opportunities. Because according to me, if Rinku Singh will be striking at 150, Russell is a player who can strike at 220. So
आई कैन से इन दैट टर्म्स कि भाई रसल इज बीइंग अंडर यूटिलाइज, क्योंकि केकेआर ने इतना महंगा प्लेयर खरीद के उसको रिटेन किया है, और अगर वो उसको बैटिंग का अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रहे हैं तो इट मेक्स नो सेंस, राइट? अगर रसल को वहीं रहना है नीचे, रसल को पहला ओवर डालने मिला एमआई के अगेंस्ट, आई थिंक उनके थर्ड मैच में रसल को तो पहला ओवर डालने मिला था। तो और वो भी मैच में उसको ओवर क्यों दिया था? बिकॉज दे हैड टेक्निकली लॉस्ट द गेम, दैट्स व्हेन ही गॉट अ बॉलिंग चांस, ठीक है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रसल इज डेफिनेटली बीइंग अंडर यूटिलाइज बाय केकेआर, उसको बॉलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उसको बैटिंग में उसका परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है ही इज डेफिनेटली बीइंग अंडर यूटिलाइज देयर। So that is a concern for me. In That's what KKR should think about, क्योंकि that is a very great thing to discuss upon. yeah, batting में he can be brought up the order level if there's a wicket at 16th or 17th over. So I definitely think so. अगर he वहां पे should विकेट जाता है तो definitely he should definitely come up, come irrespective in. कोई भी बैटिंग में बचा हो। मतलब if अगर मेरे हिसाब से अगर एक बार फॉर वर्स्ट के सिनेरियो अगर अंकुरिश रघुवंशी भी बचा है और 16-17 ओवर में विकेट जाता है, तो आई थिंक रसेल शुड डेफिनेटली कम इन, बिकॉज दैट्स हिज गेम। Should अगर be. वो नहीं आ रहा तभी, तो इट मेक्स नो सेंस टू मी। दे आर हैवीली पैक्ड बैटिंग लाइनअप, आई एम नॉट डाउटिंग देयर बैटिंग एट ऑल। अगर उनका बैटिंग लाइनअप दिख जाएंगे, क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, रहाणे, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप सिंह और मोइन अली 9 नंबर तक बैटिंग लेके चल रहे हैं उन लोग। आई एम नॉट एट ऑल डाउटिंग देयर बैटिंग कंडीशंस, बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ मतलब अगर 2 विकेट है और 16वीं ओवर है, 15वीं ओवर है, तो आई डेफिनेटली थिंक कि वेंकटेश अय्यर इज नॉट द राइट चॉइस टू कम इन, तभी रसल को ही आना चाहिए। एंड अगर उसके बाद विकेट जाती है तो आई थिंक रिंकू सिंह ही आना चाहिए, वेंकटेश अय्यर का जगह बनता ही नहीं है तभी। So I think they are it is he is being underutilized, and same is the question again for LSG team कि रवि बिश्नोई का effectiveness has dropped. You know, his economy is worst, poorest economy out of all spinners in 2025. खाली 3 ही विकेट ले सका है वो 4 मैच में। राठी इज आउट शाइनिंग हिम, राठी उससे बेटर खेल रहा है, ठीक है? एंड ही इज वन ऑफ द रिटेन प्लेयर्स ऑफ एलएसजी बिफोर द मेगा ऑक्शन। So I think he might, there are high chances that he might lose his spot if he's, not turning around the things. Because Tuesday को I think he might get a chance क्योंकि surface is supporting him. But still I feel कि there is a big question for LSG ahead. Because LSG कितना भी करे, they don't have an international bowler there. We already Agree. discussed. They don't have any Agree. bench strength there. What उनका bench what पे कोई बंदा नहीं what बैठा do है। you think is the par score that they should look for? I think if it is slow surface, 180 probably. First inning score 180 will be defendable, you think, or chaseable? I think it will be defendable for sure because it is an afternoon game. Last time जो 200 बना था वो रात का मैच था, तो we cannot compare that. And रात को कलकत्ता में ड्यू भी आता है, तो I think 180 will be a score that can be defended easily with the bowling lineup KKR is having. I am not at all backing LSG. मैं Okay. LSG को बैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि LSG का bowling lineup का उनको खुद को भरोसा नहीं I है। I also feel like first inning score 170, 175, between 175 will be more than enough, to be honest. क्योंकि नेक्स्ट सन लाइक आफ्टरनून का मैच है, तो पिच भी आई थिंक चेंज होगा थोड़ा, नॉट ड्रास्टिकली, बट ये हम लोग ने लास्ट चेन्नई की टाइम पे भी देखा था, चेन्नई की मैच में, लाइक इन द सेकेंड इनिंग्स द पिच slowed a bit. So let's see. Now pitch will definitely get slow. Afternoon match will not impact much, but yeah, that is the only issue. And so मेरे ये हिसाब से तो आई थिंक कोई और उसमें कंसर्न नहीं है। So Surface is definitely who going to be are you speaking. backing? Who are you backing to win tomorrow? KKR. I want KKR to win, but I am going with LSG because मैं जो टीम बोलता हूँ वो हार ही रही है, तो मैं LSG बोल। Parth is going with LSG. What about you, Jeel? Who are you के supporting? I आर am with LSG के आर for tomorrow. Hiren Bhai is with के आर FKR, so it's 2 versus 1. What about you, Parsha? KKR. I'm supporting KKR tomorrow. Again, it's me the deciding vote. So it's 2 versus 2 KKR, and I'll go with LSG, to be honest. I feel LSG will win tomorrow. 3-2 3 versus 2. It is Let's not see. 3 to Let's 2 go, guys. guys. It is KKR हेड lead टू है हेड भी because it is सेम ही 3, है। हाँ 3-2 KKR में, बट मैं KKR इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो टीम का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ ना वो टीम नहीं जीत रही है, बट मुझे चाहिए बट KKR मैं जीते। मैं जो ले रहा हूँ वो जीत रही है ना, मैं इसके लिए जो मैं ले रहा हूँ LSG बोल रहा हूँ भाई। तू रहने देना, तेरा तो प्लेयर नहीं चल रहा है, तू टीम की क्या बात कर रहा है? आई गो विथ LSG.
तो आई एम विद केकेआर गाइस, बट फॉर ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि एलएसजी शुड विन टुमारो, तो मुझे देखना है So अभी you are with KKR, so it's 3 versus 2. इट इज 3 versus 2, बट दिस इज फॉर ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आई एम टेलिंग कि कल एलएसजी ही जीतेगा। अभी मुझे देखना है कि Let's एलएसजी जीतता है कि नहीं। नहीं, KKR। आई एम विद केकेआर, हिरेन भाई आई एम विद यू। तुम, मैं और पार्शव, अपन तीनों दिन लाइन में साथ में ही है। खाली ये स्क्रीन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एलएसजी जीतेगा। मुझे देखना है but अभी क्या होता है कल। हाँ ठीक है, लेट्स सी कि आपका ज्यादा पावरफुल है भविष्यवाणी की मेरा, देखते हैं। Done. So yeah, guys, that was our time. That was our preview Okay. for the match, afternoon game, KKR versus LSG. Thank you, guys. Please like, share, subscribe. Follow us on Instagram and stay tuned for the next episode. Meet you soon. Bye, guys. Thank you. शुभ रात्रि। Thank you.